Good morning, students. Today I will teach you math. Student, today we continue our chapter number 4, fraction. Okay, student. Today we continue our chapter number 4, fraction. In fraction, today we start part number 2. Okay, student. In this chapter, today we start part number 2. In part number 2, student. So what we learn, student? What we learn? We learn about the 4 operations on fractions. The 4 operations the 4 operations on fractions. Okay, fractions. Clear, student? The 4 operations on fractions. बेटा वैसे बेसिक 4 ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? टेल मी. बेसिक 4 ऑपरेशंस. विच ऑपरेशंस? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवीजन. ओके स्टूडेंट, it is a main basic 4 operations. Okay, we solve any operations. Clear? So first of all we start addition and subtraction. Okay, in fraction. Okay student, today we start addition and subtraction. So student, how to operations in addition and subtraction? So first of all, first rule is your first rule. Start with rule. Your first rule is, in case of like fraction, you know like fraction and unlike fraction. Student, I told you before class in part first, okay, what is like fraction and unlike fraction, and I told you like fractions, unlike fractions convert in like fractions. Okay student, so let's start now. Here is a example. Today we start addition and subtraction. Okay student, then here is the example. 3 upon 7 plus 1 upon 7 plus 2 upon 7. Okay student, and next example is 7 upon 9 minus 3 upon 9. Clear student? Okay student, तो रूल फर्स्ट आपका कहता है कि in case of like fraction, the sum or difference is a fraction with the common denominator as its denominator and the sum of difference of the numerator as its numerator. Means बेटा, अगर हम डिनोमिनेटर देखेंगे कि कॉमन है, देखेंगे कि सभी फ्रैक्शंस में अगर डिनोमिनेटर कॉमन है तो बस हम एक बार डिनोमिनेटर लिख देंगे और जो भी ऑपरेशंस हुए हैं ऐड हुआ है ना, तो बस ऐड कर देंगे 3 + 1 + 2. तो टोटल स्टूडेंट क्या हो गया? 3 + 1 4 + 2 6 और 6 upon 7. So it is your operations of fraction. It is your operations on fraction. How are solved? First of all, we common these denominators. So here are 7. 7s are common in all fractions. So we put here in denominator 7. Then we add it. And next question, here is common denominator and common denominator is 9. Then here is 7. So we write here 7. Which sign here? Here is minus. So here is 3. 7 minus 3 is equal 4 और 4 upon 9. क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए हमने ऑपरेशंस कर लिया कब? जब हमारे क्या थे? डिनोमिनेटर्स कॉमन थे. ओके स्टूडेंट, डिनोमिनेटर्स हमारे कॉमन थे तो हमने ऑपरेशंस कर लिया. बट अब क्या होता है स्टूडेंट, देखिएगा रूल सेकंड है हमारा. रूल सेकंड है कि अगर डिनोमिनेटर कॉमन ना हो तो वहां पे हमारा रूल सेकंड काम करेगा. ओके, हाउ? फॉर ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग मिक्स्ड फ्रैक्शन. फॉर ऑपरेशंस, देखिए रूल सेकंड है, इसमें क्या है? ये तो सिंपल फ्रैक्शन था, बट क्या है? एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का है. फॉर ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग मिक्स्ड फ्रैक्शन, फर्स्ट
convert all mixed fraction into improper fraction after performing the addition or subtraction, reduce the result to its simplest form, and if an improper fraction convert back to a mixed fraction। तो रूल सेकंड बेटा आपका कहता है, रूल सेकंड आपका कहता है कि मान लीजिए कोई भी फ्रैक्शन आपका, मान लीजिए कोई भी ऑपरेशन आपका करना है और वो भी किसमें हो, वो किसमें हो बताइए, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो, किसमें हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में 1 and 5/13 प्लस 2 and 1/13, क्लियर स्टूडेंट, इज इक्वल, ओके स्टूडेंट, इज इक्वल। हाउ टू सॉल्व दिस? सो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल रूल सेकंड ही तो है आपका, रूल सेकंड क्या कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कन्वर्ट ऑल मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू सिंपल फ्रैक्शन। सो स्टूडेंट हियर इज 3/13, देन 13 1 जा 13 प्लस 5 क्या हो जाएगा 18/13, देन प्लस 3 2 जा 6 और 1 7/13, क्लियर स्टूडेंट। सो वी कन्वर्ट इनटू सिंपल फ्रैक्शन। सर नेक्स्ट स्टेप, सो देखिए स्टूडेंट हियर इज 13 इज कॉमन, सो स्टूडेंट हियर इज इक्वल 13, ओके 3, फिर नेक्स्ट प्लस का साइन, नेक्स्ट 18, फिर नेक्स्ट प्लस साइन, नेक्स्ट 7, ओके स्टूडेंट 7 और 3 10, 10 प्लस 18 आपका क्या हो जाएगा 28, तो 28/13, ओके इट इज योर आंसर। सो स्टूडेंट रूल सेकंड क्लियर है, बोलिए रूल सेकंड क्लियर है ना। यहाँ सिंपल था, यहाँ मिक्स था, तो मिक्स फ्रैक्शन को हमने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, ओके स्टूडेंट। तो चलिए नाउ स्टूडेंट एक अल्टरनेटिव मेथड है, अल्टरनेटिव मेथड। अच्छा एक बात बताइए बेटा, ये कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, बोलिए। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बेटा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जो न्यूमरेटर आपका क्या होता है ग्रेटर होता है, और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो ग्रेटर हो। इट इज a improper fraction. So student we convert into proper fraction. How to convert? So we divide 28/13. So here is 28 को आप डिवाइड करिए 13 से, 13 2 जा 26, 2। अब देखिए बेटा ये 2 क्या है, क्वोशिएंट है ना। जो क्वोशिएंट होता है बेटा उसे हम ऐसे नोट करते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं, जो रिमाइंडर होता है उसे ऊपर करते हैं और जिससे डिवाइड किए हैं उसे नीचे। तो फाइनली आंसर 2 and 2/13। एक एग्जांपल और लीजिए, अच्छे से क्लियर होगा, ओके स्टूडेंट। तो नाउ वी टेक अ एग्जांपल, क्लियर, नाउ वी टेक अ एग्जांपल, ओके स्टूडेंट। सो हियर इज एन एग्जांपल, ओके स्टूडेंट, हियर इज एन एग्जांपल, और योर एग्जांपल इज 3 and 5/11 plus -1 and -2/11, okay student। So first of all here is mixed fraction, so we convert into simple fraction, okay student। तो 11 3 जा 33, 33 plus 5 38, 38/11 minus 11 1 जा 11 plus 2 13, 13/11, okay student। then here is 11 or 11 is common, so we write here 11, then we note here 38, then here is minus sign, so we put here minus, then here is 13, so we put here 13, then student we solve it। so 38 minus 13, so here is 8 minus 3 5, 3 minus 1 2, 25/11। so student it is improper fraction, so we convert into proper fraction। how to convert? First before this question we describe it। so student here we write finally 11 2 ja 22, 3, 11 2 ja 22, 22 plus 3 25, 25/11, so it is your answer, okay student, it is your answer। क्लियर, बोले क्लियर हो गया ना। चलिए
नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं, यहाँ तो डिनोमिनेटर सारे फ्रैक्शंस में कॉमन थे तो आप कर लेते थे, ओके स्टूडेंट। बट अब क्या होगा, देखिएगा एक आपका ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बेटा जिसमें क्या होगा, एक ऐसे एग्जांपल्स होंगे बेटा कि मान लीजिए जिसमें आपकी डिनोमिनेटर कॉमन ना हो। सर अब क्या करेंगे हम अगर डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है? तो बहुत ही सिंपल, पहले रूल 3 हम रीड कर देते हैं, आप लोग सुन लीजिए, ओके। देखिए रूल 3 आपके बुक में दिया हुआ है, फॉर ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग अनलाइक फ्रैक्शन, फॉर ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग अनलाइक फ्रैक्शन the sum of difference is a fraction with the LCM of the denominator as its denominator and the sum or difference of the equivalent numerator as its numerator। सर क्या कहा आपने, मुझे कुछ नहीं क्लियर हुआ। नाउ आई टेल यू स्टूडेंट, रूल 3 हमारा कहता है कि जब भी हमारा क्या हो, अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन, जिसके डिनोमिनेटर कॉमन हो वो लाइक, जिसके डिनोमिनेटर कॉमन ना हो अनलाइक, ओके स्टूडेंट। तो नाउ व्हेन डिनोमिनेटर्स, व्हेन फ्रैक्शंस आर अनलाइक, सो वी कन्वर्ट इनटू लाइक। हाउ टू कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शंस, ओके। सो लेट सी हियर अ एग्जांपल, हियर इज अ 3/5 प्लस 1/2 प्लस 3/2। स्टूडेंट इट इज अ अनलाइक फ्रैक्शन, okay। तो first we take a LCM, first we take LCM of these denominators, okay। first we take LCM of these denominators, okay student, clear। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे LCM लेंगे किसका, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है, 2 है और 10 है, तो 5, 2 और 10, इसका हम लोग LCM लेंगे किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से, तो 2 5 जा 5 तो डिवाइड होगा नहीं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। नाउ 5 से, 5 1 जा 5, 1 टाइम 5 1 जा 5, तो हियर इज एलसीएम इज इक्वल 2 into 5 इज इक्वल 10। एलसीएम क्या आ गया बेटा, 10। अब एलसीएम तो हमारा 10 आ गया, ओके। अब हमें क्या करना है, इस 3/5 को इक्विवेलेंट कर लेना है, ठीक है। मींस इक्विवेलेंट क्या करना है, अब क्या करेंगे सर, देखिए डिनोमिनेटर में फर्स्ट फ्रैक्शन 3/5, तो आप यहां लीजिए 3/5। फर्स्ट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या है, 5 है ना, इस डिनोमिनेटर से देखिए क्या होगा, डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर होगा जिस भी फ्रैक्शन का उसमें एलसीएम में डिवाइड करेंगे। जो भी क्वोशिएंट आएगा बेटा, जो भी क्वोशिएंट आएगा उस क्वोशिएंट से आप क्या करोगे, क्वोशिएंट से क्या करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। देखिए 1/2 क्वोशिएंट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। क्वोशिएंट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। अब देखिए बेटा कैसे, एलसीएम इज 10, ओके, एलसीएम इज 10। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड 10 बाय फर्स्ट डिनोमिनेटर एंड फर्स्ट डिनोमिनेटर इज 5, तो 5 से हम बेटा 10 में डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, ओके। सो क्वोशिएंट इज 2, ये बेटा क्या है, क्वोशिएंट ही है ना, बस इसी क्वोशिएंट से हम यहाँ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 into 2/5 into 2, okay, so it is 6/10, clear। now in second fraction 1/2, 1/2, अब 2 डिनोमिनेटर में 2 है तो एलसीएम क्या था, 10 था ना, इसी 10 में 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, क्लियर। क्वोशिएंट क्या आया बेटा, दूसरे वाले में क्वोशिएंट क्या आया, 5 आया, तो बस आप क्या करो, 1 into 5, 2 into 5, ओके स्टूडेंट, ओके। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट थर्ड इज 10, और 10 से जब आप एलसीएम 10 था, 10 में डिवाइड करोगे तो 10 1 जा 10, क्लियर। तो हियर इज 1, हियर इज 1। अब आप क्या करोगे बेटा, 3 से 1 में मल्टीप्लाई करोगे, 10 से 1 में मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, 3 1 जा 3, 10 1 जा 10।
देखिए बेटा, अब जो आपका अनलाइक फ्रैक्शन था वो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया कि नहीं कन्वर्ट हो गया? हो गया ना। तो बस अब सिंपली क्या कर लीजिए, ऑपरेशन कर दीजिए, सॉल्व करिए इसे, इक्वल करिए, 3/5 6/10 के इक्वल है, प्लस 1/2 5/10 के इक्वल है, और 3/10 3/10 के इक्वल है। कोई बात नहीं, सॉल्व कर दीजिए इसे, वेरी इजी। वैसे ही जिससे इससे पहले आपको बताया था, 10 कॉमन है, 10 कॉमन ले लीजिए। 6 5 3 8 प्लस 6 14 14/10। बेटा इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 7/5। कैसे हमने 2 से डिवाइड कर दिया बेटा? 2 इज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हमने आपको बताया था सॉल्व करना बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकाल के उसी से सॉल्व कर देंगे। 14 और 10 का जब हम HCF निकालेंगे बेटा तो 2 आएगा, और 2 से जब सॉल्व करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। या वैसे भी चेक कर लीजिए ना, किस नंबर से 14 और 10, एक ऐसे नंबर से जो डिवाइड कर दे। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट, तो ये 7/5 आ गया। चलिए ये तो एक इजी एग्जांपल था। ये तो एक इजी एग्जांपल था। अब मान लीजिए वही क्वेश्चन हमारा मिक्स में हो, तो एक एग्जांपल हम और सॉल्व कराते हैं। मान लीजिए ऐसे ही क्वेश्चन हमारा किस में हो? मिक्स में हो। लाइक हेयर इज 6 and 2/3 प्लस 3/5, ओके, प्लस 1 and 8/9। तो चलिए बेटा, मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले हम क्या करेंगे? सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 6 3 जा 18 प्लस 2 20/3। देखिए कैसे आप अपनी बुक में सॉल्व करेंगे वो इस अकॉर्डिंग करेंगे। प्लस 3/5, क्योंकि मिक्स नहीं है, सिंपल में ही है, प्लस 9 1 जा 9 प्लस 8 17/9। कैसे करते हैं? देखिए इससे इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, जो न्यूमरेटर होगा उसे प्लस कर देंगे। 9 1 जा 9 प्लस 8 आपका क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। करके देख लीजिएगा। ऐसे ही हम मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए यहाँ तक क्लियर। अब सर क्या करें? तो बेटा हमने आपको बताया है कि अब आपको क्या करना है, बस एलसीएम लीजिए। एलसीएम 359 का 359 का एलसीएम ले लीजिए। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 5 और 1, 5 1 जा 5। तो एलसीएम क्या आया? 3 3 जा 6, 5 जा 30। एलसीएम क्या आया बेटा? 30 आ गया। बस फर्स्ट फ्रैक्शन में देखेंगे हम कि डिनोमिनेटर में क्या है? 3। इस 3 से इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे। 3 से एलसीएम में डिवाइड करेंगे। 3 10 जा 30, 3 10 जा 30। ओके स्टूडेंट, अब 3 10 जा 30 हो गया। क्वेश्चन क्या आया? 10 ही तो आया। और हम क्या करते हैं? क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। क्लियर? देखिए इस अकॉर्डिंग आप अपनी बुक में, सॉरी कॉपी में सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट फ्रैक्शन हो गया। सेकंड की बात करें, सेकंड में डिनोमिनेटर में क्या है? 5। इस 5 से 30 में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 5 6 जा 30। क्वेश्चन क्या आया? 6। इसी 6 से प्लस करेंगे 3 और 5 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर? ऐसे ही आपको अपनी बुक में करना है। प्लस इस वाले न्यूमरेटर को नोट करिए। सॉरी 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45। एलसीएम 45 होगा बेटा। देखिए 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 एलसीएम होगा। और 45 जब एलसीएम होगा तो 3 से 45 में डिवाइड करेंगे बेटा। 45 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। क्लियर? 15 आएगा, तो यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से 45 में जब डिवाइड करेंगे बेटा तो क्वेश्चन क्या आएगा? 5 9 जा कितने टाइम? 9 टाइम में, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब 9 से 45 में तो 9 5 जा 5 से डिवाइड होगा, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। करके देख लीजिएगा बेटा, बताया है आपको। ओके, अब नाउ मल्टीप्लाई दीज थिंग्स।
20 मल्टीप्लाइड बाई 15 तो क्या हो जाएगा 300, ठीक है, अपॉन 15 3 जा 45 प्लस 9 3 जा 27 अपॉन 45 प्लस 9 5 जा 45, 17 5 जा 85। क्लियर। नेक्स्ट अब देखिए ये लाइक फ्रैक्शन है, क्या कर लीजिए, कॉमन क्या है 45, तो 45 कॉमन हो जाएगा। नेक्स्ट 300 प्लस 27 प्लस 85, ओके, ऐड कर दीजिए। 300 में 85 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 300 में 85 को ऐड करेंगे और 27, तो 27 और 85 ऐड कर लीजिए, 7 5 12 और ये 11। क्लियर। 7 5 12 के 2 1 कैरी और 11 प्लस 300 और 300 में 114 को ऐड करेंगे, सॉरी 112 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 412, ओके, 412 अपॉन 45। क्या ये रिड्यूस हो सकता है? सर हो सकता है। क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है? सर हो सकता है। करिए, कैसे करेंगे, हाउ, ओके, 3 से, बोले 3 से होगा ये, बोलिए हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बोलिए। सर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि दोनों में कोई HCF हमारा जो कॉमन आएगा वो कॉमन HCF 1 आएगा, इसलिए नहीं होगा। तो हम डायरेक्टली 45 से क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे, 45 से डिवाइड करेंगे 412 में, रफ कर लीजिए कहीं पे, ठीक है, रफ कर लीजिए कहीं पे। 45 से 412 में डिवाइड करेंगे तो 45 9 जा, क्या 9 टाइम में, बोलिए, तो 9 टाइम में 9 5 जा 45, 5 4 करें, 9 4 जा 36, 36 और 4 40, ओके। तो ये क्या आ जाएगा 7 0 और, तो देखिए कैसे करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है 9 नोट कर दीजिए, रिमाइंडर क्या है 7 नोट कर दीजिए, डिनोमिनेटर में आपका 45। ओके स्टूडेंट, आई थिंक दिस क्वेश्चन you understand, okay, are you student, okay। next student, क्या होता है, एक एग्जांपल हम आपको और बताएंगे, उसके बाद आप लोगों को एक्सरसाइज करनी होगी। देखिए यहाँ पे केवल एडिशन था, क्या होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ आते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं और कैसे करते हैं। लाइक हियर एग्जांपल, here is an example for operations involving both addition and subtraction, find the sum बिफोर द डिफरेंस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम फाइंड करते हैं, फिर डिफरेंस करते हैं। लाइक हियर इज एग्जांपल 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/2, या सिंपल ले लीजिए, बताया था ना प्लस और माइनस का, चलिए ये ले लीजिए 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/10। तो क्या करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा 6 और 8 और 10 का, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 से 2 2 जा 4 5 और 3, नेक्स्ट 2 से 3 1 5, नेक्स्ट 3 से 3 1 जा, नेक्स्ट 5 से 5 1 जा। क्लियर। अब एलसीएम क्या होगा, 2 2 जा 4, 5 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120, एलसीएम क्या आ जाएगा 120, निकाल लीजिएगा। कैसे, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा 40, 43 जा 120, एलसीएम क्या आ गया 120। अब क्या करते हैं, एलसीएम में फर्स्ट डिनोमिनेटर से जब आप डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12, हियर माइनस 6 2 जा 12, मतलब किससे डिवाइड होगा 20 टाइम, मल्टीप्लाई कर दें 20 से, 6 इंटू 20 प्लस 1/8। अब 8 से 120 में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में होगा, 8 1 जा 8 और 5, 8 5 जा 15, मतलब 15 टाइम में, ओके, 15 टाइम में, माइनस का साइन 10 से 12 टाइम में, 1 इंटू 12 और 10 इंटू 12, ओके। अब देख लीजिए ये क्या हो जाएगा 20, ये 120, ये क्या हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 12, ये क्या हो जाएगा 120। डिनोमिनेटर्स कॉमन, सॉरी हियर इज माइनस। अब क्या करेंगे, तो देखिए बेटा
120 कॉमन है बेटा, यहाँ पे 120 है। क्या करिए 20 प्लस 15 और -12। अब क्या करेंगे बेटा, 20 प्लस 15 को ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा 35 और -12 कर लीजिए। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 120। 35 -12 कर लेंगे, सॉरी देखिए सबसे पहले हमने ऐड कर लिया, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। 35 -12 3, 3 - 1 2, तो योर आंसर इज 23/120 और इट इज इन स्टूडेंट प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट, तो आई थिंक ऑल क्वेश्चंस यू हैव अंडरस्टूड। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।